Good morning, students. In today's class, we are discuss about our syllabus breakup. So, as you can see, uh, our paper is divided in two parts. The first one is theory, and the second is project. Theory is of 80 marks, and project is of 20 marks. Project is related to these topic, in which you have to submit a file. So, in by which you can get 20 marks. Our syllabus is the theory paper is divided into two parts. The first one is part A, foundation of business, and the second is part B, finance and trade. So in first topic, foundation of business, we will discuss about nature and purpose of business, the concept of business, definition of business, features of business, importance of business, types of industries, primary sector, tertiary sector, secondary sector, risk element. So basics of business. In second chapter, we will discuss about forms of business organization. There are types of organization by which you can start a business. Every organization have its pros and cons, sole proprietorship, partnership, joint venture, company, cooperative societies, etc. In third chapter, we will discuss about public, private and global enterprises. Public, private. These units, these enterprise or these enterprises will be divided on the basis of government stake or government share or public share. In fourth chapter, we will discuss about business services like transportation, insurance, banking. So these services are run to earn profit, so are known as business services. Types of business services discussed in this chapter. Emerging modes of business, that means new era of business like e-commerce, e-business and related aspects. In sixth chapter, we will discuss about social responsibility of business and business ethics. अगर हम बात करें तो our business responsibility towards society, customer, employee. So in this chapter, we will discuss responsibilities towards employees, workers, customers, and business ethics. Ethics represents moral values of business, like what is wrong, what is right towards the society. So this unit is of 40 marks. In second unit, finance and trade, in seventh chapter we will discuss about sources of business. Finance, as you know, funds to start the business or to run the business. So there are two types of needs of a business, short term and long term. So on the basis of this category, we will discuss the sources of business finance like equity shares, preference shares, debentures, etc. Next one is small business. Small business, government determine the limits of small business, like above 10 lakh, below 10 lakh. So micro units, small units, tiny units. So we will discuss in this chapter about these limits. Next one is internal trade. Internal trade means a business between the two citizens of a country. विद इन अ कंट्री जो ट्रेड होगा हम उसी को इंटरनल ट्रेड कहेंगे. सो इसमें हम इम्पोर्ट और इसमें हम डोमेस्टिक ट्रेड लाइक रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, इनके प्रॉस कॉन्स, सर्विसेज एट्सेट्रा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस में हम पढ़ेंगे कि कंट्री में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम करते हैं, एंड प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब में पूरा लीगल प्रोसीजर इनमें पढ़ेंगे. तो दिस यूनिट इज़ ऑफ 40 मार्क्स, 40, 40, 80 एंड 20 मार्क्स प्रोजेक्ट. सो देयर इज़ ऑल्सो design of question paper of BSc. द फर्स्ट वन इज़ रिमेंबरिंग, दैट मीन्स जो क्वेश्चन लर्न करने वाले होते हैं. अंडरस्टैंडिंग, जो आपको समझाने वाले हैं. अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग में आपकी केस स्टडीज़ आएगी. केस स्टडीज़ मीन्स जो बिज़नेस से रिलेटेड होती है, जो बिज़नेस से अगर आप सपोज इस पोजीशन में होते हैं तो आपके क्या डिसीजंस होते हैं वो अपने इसमें आ जाएंगे. ठीक है. तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गिवन है आपको कितने आएंगे. हालांकि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से CBSE के नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है. सो बेसिक ख़त्म होने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पज़ ऑफ बिज़नेस. सिंपल सी बात है कि नेचर और पर्पज़
और बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल पर्सन, एनी एक्टिविटी डन टू अर्न अ प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस। बट अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है जिसने प्रॉफिट मोटिव से की गई है तो वो भी बिज़नेस है। आपने कोई सडन एक्टिविटी की जिससे आपको प्रॉफिट हुआ तो वो भी बिज़नेस का पार्ट माना जाएगा। एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, बिजनेस मीन्स एन एक्टिविटी विच इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न अ प्रॉफिट एंड हैव अ लीगल ऑब्जेक्ट, जिसका लीगल ऑब्जेक्ट होगा, रेगुलर बेसिस पर की जा रही है, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करने की बात हो रही है, उससे हम कहेंगे बिजनेस। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आखिर बिजनेस किया ही क्यों जाता है। एक्चुअल में बिजनेस जो है ये बिज़नेस जो है ये हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए किया जाता है। अगर हमारी नीड्स है तो बिज़नेस है, अगर नीड्स नहीं है तो बिज़नेस भी नहीं है। लाइक हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई उन्हें बेचने के लिए तैयार होगा, क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरत है। अगर हमारी सपोज ज़रूरत ही नहीं होगी तो बिज़नेस भी नहीं होगा। हमारी अनलिमिटेड वांट्स तो नहीं की जा सकती, लेकिन जितनी वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है वो बिज़नेस के थ्रू ही किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसान इसे पूरी कर लेगा बदले में वो भी कंसिडरेशन या कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि हम भी उसे पे करें। तो बिज़नेस कॉन्सेप्ट जो है ये हमारी नीड्स है, और ह्यूमन नीड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है। दैट मीन्स कि जब से इंसान ने अपने आप को समझना स्टार्ट किया तब से उसकी ज़रूरतें हैं और तब से ही बिज़नेस भी चलता हुआ आ रहा है। तो बिज़नेस जो है ये कॉन्सेप्ट, अब सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है या इकोनॉमी जो है वो बिज़नेस पर डिपेंडेंट होती है, ट्रेड पर डिपेंडेंट होती है। जितना अच्छा बिज़नेस होगा उतनी ही कंट्री की इकोनॉमी होगी। लाइक अमेरिका आज डेवलप कंट्रीज़ में है, क्यों? क्योंकि उसका वहाँ का ट्रेड बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, उसकी इकोनॉमी अच्छी रहती है। लेकिन इंडिया में थोड़ा अभी हम डेवलपिंग में चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अभी इंपोर्ट थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी अगर लॉकडाउन की हालत देखें तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही ट्रेड बंद हुआ था लॉकडाउन में, वैसे ही हमारी कंट्री की हालत भी ख़राब हो गई। सो ट्रेड जो है वो किसी भी कंट्री को आगे लेकर जाने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि ट्रेड स्टार्ट कैसे हुआ, पुराने टाइम में होता कैसा था, क्या बैंकिंग सिस्टम हुआ करते थे। देन बिज़नेस कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे हम कि बिज़नेस आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट अर्न करने या मनी कंसिडरेशन के साथ की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड जो बिना मनी की जाती है उसे हम नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। लाइक आप एक रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करने गए, बदले में आपको बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, ये होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ लाइक आप घर पर रोज़ खाना खाते हैं, बदले में आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता, तो वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फीचर्स पढ़ेंगे बिजनेस के, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे बिजनेस के, आखिर बिजनेस क्यों किया जाता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे कुछ जिसमें हमारा प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगी, सोसाइटी के लिए होंगे एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, इंडिविजुअल जो आपके यहाँ काम करते हैं उन्हें क्वालिटी गुड कंडीशंस देना, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी गुड्स देना। अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके लिए क्या जिम्मेदारी है प्रॉफिट की, लाइक जितना प्रॉफिट होगा उतनी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दो होती है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन का करती है जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर को करते हैं। प्रोड्यूस गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का काम, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये हमारे कॉमर्स का पार्ट हो जाए। इंडस्ट्री के मीनिंग और टाइप्स पढ़ लेंगे। कॉमर्स में हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि हमने आपको बता दिया। एंड द लास्ट इज बिजनेस रिस्क। देखो एक रिस्क एलिमेंट होता है, रिस्क जो है वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी से जुड़ी हुई होती है। दैट मीन्स फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हमें नहीं पता। तो इस वजह से बिज़नेस में रिस्क होती है कि फ्यूचर में सपोज़ बिज़नेस में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, नए कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ सकती है, तो वो सारी की सारी रिस्क हमें बियर करनी पड़ेगी। सो इन सब टॉपिक को हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। द चैप्टर इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। सेक्शन 1 डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। सेकेंड डील्स विद द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारे डील करता है एंशिएंट इंडिया के इसमें, ठीक है। जो सेकंड है कॉन्सेप्ट वो होगा हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें सेक्शन फर्स्ट की तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स।
इंडिया हैज़ हिमालयन, अब देखो इन्होंने बताया है कि बेसिक अपना जोग्राफिकल बताया कि नॉर्थ में हिमालय है हमारे, साउथ में वाटर है, और चाइना की तरफ से जो आते हैं हमारे रूट, जहाँ से हमने पहले सिल्क खरीदने का काम करते थे, वो था हमारा सिल्क रूट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिस्टम पढ़ा होगा आपने सिल्क रूट वगैरह के बारे में। मैरीटाइम ट्रेड मतलब समुद्री रास्तों से हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो हमारा स्पाइस रूट है, क्योंकि इंडिया पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था। द प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया डेवलप ड्यू टू फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने ये सारे के सारे रूट्स डेवलप किए हैं। मैनी ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑल्सो स्टार्टेड, इसके अलावा और भी कई रास्तों के थ्रू हमने ट्रेड स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज बेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया, कि हम जो गोल्डन बर्ड कहलाते थे वो हमारे इन्हीं ट्रेड की वजह से कहलाते थे, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी ट्रेडिंग कंडीशन में था। द सिविलाइजेशंस लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो हैज़ एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शन विथ मेसोपोटामिया एंड ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स। अगर हम बात करें तो जो सिविलाइजेशंस है हमारी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वो भी कमर्शियल एक्टिविटी, उसके हमारे मेसोपोटामिया से कनेक्शंस थे, हम वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स वगैरह परचेज करते थे। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय सब्सटेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट। इस पीरियड को हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ और शहरीकरण पे माना। देयर वर सम ट्रेड रेगुलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, वेइंग प्रैक्टिसेस। अगर हम बात करें तो कुछ ट्रेड की रेगुलेशंस लाइक टैक्स वगैरह जो कलेक्शन था, पुराने टाइम में भी टैक्स लगाया जाता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स वगैरह थे हमारे, ठीक है, जैसे कि काकरनी, सुवर्णा, ये गोल्ड के कॉइन्स वगैरह। वेइंग प्रैक्टिसेस, बिजनेस करने की प्रैक्टिसेस हो गई। वेट करने की प्रोसेस, लाइक लिक्विड को कैसे करना है। लेटर ऑन सम कॉमन एक्सेप्टेबल वेट्स एंड मेजर्स वर डेवलप्ड, बाद में कुछ ऐसी चीज़ें लाइक जो हमारे आज के टाइम में वेट्स एंड मेजर के काम में लिया जाता है, उन्हें डेवलप किया गया, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल होंगे। तो देखा जाए तो हमारी ये हिस्ट्री हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने बताया जा रहा है कि आखिर होता कैसे था, कुछ ट्रेड के बारे में, कुछ हमारे बेसिक कल्चर के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, कि आखिर बैंकिंग सिस्टम कैसा हुआ करता था। बैंक, देखो आज बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड बैंक टू, हमारे पास जो सेविंग्स है उसे डिपॉजिट करने के लिए, और किसी को अगर हमें लोन वगैरह की फैसिलिटी चाहिए, तो पहले भी लोन की फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन उसके लिए हमारे पास बैंक नहीं थे। तो सबसे पहले तो हमने कॉइन्स बनाए, मेटल कॉइन बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने कुछ कॉइन्स बनाए जिसके थ्रू हम लोगों ने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किए। नेक्स्ट हमने बनाए डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी, चिट्ठी वर यूज टू बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। अगर हम बात करें तो हुंडी बनाई और चिट्ठी बनाई। हुंडी इज़ एन अनकंडीशनल नोट इन विच अ पर्सन promises to pay a sum of money to a person on a specified date or on a specified condition. That means बिना किसी कंडीशन के जब आप ये एग्रीमेंट साइन करते हो कि आने वाली फ्यूचर डेट को आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट बिना किसी शर्त के पे कर दोगे, उसे को हम कहेंगे हुंडी और चिट्ठी, ठीक है। हुंडी बिकेम वेरी पॉपुलर, हुंडी बिना किसी कंडीशन की होती थी इसलिए बहुत पॉपुलर थी। हुंडी इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच, हुंडी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या क्या आएगा, वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉफिट, एक पेमेंट की वारंटी है कि भैया हम आपको पेमेंट करेंगे, जिसमें आप अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि बिना किसी मैं आर्ग्यूमेंट के आपको पेमेंट कर दूंगा। कुड बी ट्रांसफर थ्रू वैलिड नेगोशिएशन, कि एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आप किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक आपके भी यहाँ पर कोई और पैसा कलेक्ट कर सकता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज़ वर यूज बाय मर्चेंट आर एज फॉलोज, ये कुछ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज़ दे रखी है, लाइक धनी जोग, सहयोग, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज की क्लास से इतना ही, थैंक यू।